Now, students, we are going to start chapter 11, some application of trigonometry. Whenever an engineer is faced with the problem to finding the width of the river or the height of the hills, etc., which is impossible or inconvenient to be measured with a measuring tape. He imaging a big triangle in a nature, one of whose side is the line drawn across the river or the line drawn vertically downward to the ground from the top of the hill, and such that some other side of the triangle can be easily measured with the measuring tape, and angle some angle of triangle can also be measured by secant or other surviving instrument. Knowing some side and the angle, engineer can use this knowledge of trigonometry ratio to calculate the unknown side, the width of the river और height of the hills. मतलब ये इतना समझ में आया। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये प्रॉब्लम आने लगी थी, जैसे हाइट, हमें हिल्स की हाइट चाहिए, तो हम कैसे उसको पता लगाएंगे। तो हिल्स की हाइट को पता लगाने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का यूज़ किया गया। इस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये मिला कि हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रोड, like that. These type of the problems that we had in previous time, that is to solve the problem of height and distance in term of angle of elevation and angle of depression are useful tools and are defined. Means हमने दो एंगल्स मान लिए हैं। एक एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन? If the object is above the horizontal line through the eye, if it is at higher level than our eye, we have to lift up our head to view the object. In this process, our eyes moves through an angle. This angle is called angle of elevation of that object. Okay. नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन? अब आप इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इफ अ मैन इज स्टैंड हेयर, द एंगल ऑफ एलिवेशन गोज अप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गोज डाउन। ओके, और तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया एंगल डिप्रेशन कहलाता है। और आप कहीं नीचे कहीं ज़मीन पर खड़े हैं और ज़मीन पर खड़े होने के बाद किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, दैट इज़ दिस एंगल इज़ कॉल्ड, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. When a man see an object which is below the horizontal line through his eyes moved downward through the horizontal line. The angle so formed is called angle of depression. These two angles are used in this exercise as well as trigonometrical ratio, tan, cos, sin. These are also used in this exercise, which is we know further. हम लोग इसके बारे में जानते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके रेशियोज़ के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं द एंगल्स। वी हैव टू नो अबाउट 0, 30, 45, 90 एंड द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स आल्सो वी नो। देन यूज दिस trigonometrical ratio in this chapter and find the width and height. How do we find the width and height? And we use the exercise to solve the questions and find the values. The first question is the angle of elevation of the top of the tower
at a distance 100 meter from its foot on the horizontal plane is found to be 60. Find the height of the tower. This is a very simple question that I am telling you. AB is the distance. Firstly we have to make a diagram which is BC is the tower, height है इसकी H and AB मतलब A पर आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, द मैन इज स्टैंड इन द ऑन द पॉइंट A और यहाँ से वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है, यानी ऊपर टावर के अपर पॉइंट को देख रहा है। द एंगल इज 60। हमें हाइट पता करनी है। तो देखिए अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कौन सा फार्मूला लगना है, tan लगना है, साइन लगना है, कॉस लगना है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिया हो तो इट मीन्स हमें tan का ही यूज़ करना है। ओके, तो हम tan का यूज़ करेंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू BC, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 100 पता नहीं है, बेस की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। इट इज़ गिवन टू अस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज गिवन वैल्यूज़ एंड h इज़ फाइंड दिस द रूट 3 की वैल्यू हमको पता है 1.732 होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर टाइप। Now, this is our another type question. An observer 2 meter tall is 30 root 3 meter away from the tower. The angle of elevation from his eye to top of the tower is 30. Determine the height of the tower. अब इसमें कोई व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, मतलब ऑब्जर्वर 2 मीटर टॉल है। अब जो आदमी है वो 2 मीटर का लंबा है और वहाँ से 30√3 मीटर डिस्टेंस से वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो देखिए इसमें लिखा है AB इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर टू O ऑब्जर्वर एंड BD इज़ द टावर। ये BD पूरी टावर है, ठीक है। अब यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो the base is 30√3 and angle of elevation is 30. We have taken ADE. The first the triangle we have to taken ACDE. Sorry, C यहाँ C होगा CDE. Okay, CDE in triangle 30 DE upon CE, DE and CE. The value of DE is H and CE is 30√3. Now, putting all the values, the value of tan 30 is 1 upon √3. Find the value of H, √3 cancel out 30. Height of the tower DE plus EB 30 plus 2 32 meter. This is the 2 is the height of the man which is taken here. Now, the next type of the question, depression. The straight highway leads to the foot of a 50 meter tall tower. From the top of the tower, angle of depression of two cars on the highway are 30 degree and 60 degree respectively. What is the distance between two cars and how far is each car from the tower? अब दो चीज़ें इसमें निकालनी है। पहले तो ये निकालना है, देखो ये कि ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। दिस डायग्राम इज़ कंपलसरी। A and B आर 2 कार्स। पहले हमने मान लिया यहाँ पर एक कार यहाँ पर है और एक यहाँ, और PQ इज़ द टावर और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है P पर। देन इट इज़ द डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट है 30 डिग्री एंड सेकेंड है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला एंगल लेते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है। पहले ये समझ लीजिए दोनों कार के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस और ये कितनी दूरी पर है टावर। ओके, तो सबसे पहले हमने PBQ tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। द वैल्यू ऑफ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ दिस, सिंप्लीफाई, पुटिंग द वैल्यू, सिंप्लीफाई एंड
28.8 meter. This is our first answer. Then after in triangle PAQ tan 30 के लिए हमें 50x plus y दोनों वैल्यू ऐड करनी पड़ जाएंगी. अब हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया x plus y. We know the value of x, so we can find the value of y. Putting the value of x from 1, we get this number and simplify it properly. Then this is our answer of y. This is the y means टावर. अब डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दोनों कार के बीच के डिस्टेंस ये हो गई. डिस्टेंस ऑफ ए कार फ्रॉम टावर, तो ये हो गई. और दूसरी कार जो बी थी उसकी हमने ऐड कर लिया तो ये निकल के आ जाएगी. तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू टोटल आ जाएगी. ठीक है. दिस इज़ कार ए एंड बी. द डिस्टेंस बिटवीन द कार ए एंड कार बी वाई से, अच्छा ये कार ए की होगी और ये कार बी की होगी. ओके, ठीक. इज़ इट ओके टू एवरीवन? दिस इज़ अ कार डिस्टेंस ऑफ कार बी फ्रॉम टावर एंड डिस्टेंस ऑफ कार ए फ्रॉम द टावर. ऐड करने के बाद ये आंसर आना चाहिए. दिस इज़ योर प्रॉपर. ठीक है, ये पूरा तरीके से क्वेश्चन हो गया. इसी तरीके के आगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं. इफ़ यू कैन मेक द diagram, then the question is very easy. Now this is the another type of the question. From a point 30 meter away from the foot of an unfinished temple, the angle of elevation of the top of the is 30. How much high should the temple be raised so that the angle of elevation of the same point be 45? ठीक, तो क्वेश्चन इज़ क्लियर. बी सी इज़ अनफिनिश्ड टेम्पल. ए बी इज़ द डिस्टेंस. इफ़ इट मेक डी सी, इतना और बनाया जाए तो उसका एंगल कितना है 45. तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले नीचे वाला ले लिया हमने, यहाँ से हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली. द हाइट इज़ 17.32 मीटर. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया. बड़ा मतलब ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल लिया. इसकी वैल्यू एंगल क्या रखा 45. एच की वैल्यू हमें दे ही रखी थी. वाई निकाल लिया गया. तो वाई निकालने से हमें ये पता चल गया, इफ़ वी मेक 12.68 मीटर अबव द अनफिनिश्ड टेम्पल देन वी गेट 45 डिग्री एंगल. दिस इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द एंगल, फाइंड द हाइट. ओके.